Hey guys, it's me Shiv. Welcome back to the Shiv Mystery. Today in this video, right now we're in India, Ahmedabad, and we'll be exploring some very amazing parts of Ahmedabad and India itself. Before we get started, don't forget to hit that like button and subscribe to the channel. Hello guys, my new vlog. Please to channel my subscribe. Okay, so we took a little snack break and stopped at the store called, well, looks like oh my god. Yeah, Oso Palo. Now we have right now coffee and let's try it. We gotta dip it in the sauce first. Yummy boy. That tastes pretty nice, honestly. Wow. Let's try the gacha. Wow. That's also amazing. We'll see you guys back in a bit. Okay guys, so the name, look, oh my god, it's like right now it's raining and it's like, wow. If you guys cannot see from the camera, I'm telling you right now, it's very raining, and look at our van. It's absolutely amazing. Let's get back. I'm feeling now well. पाछळનો વ્યૂ સારો એકદમ નજીક લઈ જા કેમેરા ઓર્ડર દે Look how he's driving bike. Special moment. Special moment. Look at this, guys. Wow. No, no. હજુ ઉપર મંદિરની અવાજ ચાલુ થશે ઝડપના ફટાફટ પગ ઉપાડો નજીક ઝૂમ કરીને ઉતાર સી ટાઈમિંગ કઈ રીતનો બાકી આ બસ ઓ હાલે એ તો વિચારી નહીં કાના જંગલ જાવ કાના જંગલ આવ્યું ને કાના નહીં એટલે આ સતપુરાનું જંગલ કહેવાય કાના જંગલ તો આપણે જે કાલે આવ્યો તો ને એ છે એવું લાગે ગેટ ઉપર લખાઈને તો જી સતપુરા જાય સતપુરા કહેવાય સતપુરાની પહાડી ઓ વાહ કોઈ આવી છે આવી રીતે ટાઈગર બે ફરે ને એમાં ગેટ આવા ટાઈગર હોઈ શકે આ બધું આવશે જોવા Camera ચાલુ જ રાખવાનું શું હતું? The animal just comes middle of nowhere. Any animal. જો આ તો ચાલુ જ રાખવાનું છે. જરૂર હોય રાખવાનું તો ડિલીટ કરી દેવાનું તો પછી હા એ તો yeah, I will.
બોલો આ કોણ સ્ટુપિડ છે? અહીંયા તો ફોર્સની સતપુરા મેઇન હતું એ તે બગાડી. Now right here, and the main gate. એટલે એ આ શું કરે છે? જતો રહેતો આગળ. આટલી ચાલી જવાની પેલો સાઈન બતાવી. मैं बॉय में जाऊंगा प्लीज मम्मी से आने से चल आई ભાઈ પેલી ખુલ્લી જીપ જ જો. નમક મારે પેલું હોર્સ ને જોડે જવું તું યાર હોર્સ ને આપણે લઈને આજો કાવ 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 ઓ સે હવે જે સ્કૂલે જાય છે Mercedes पंचवटी Mercedes मैं आगे तक तो मसली जो Mercedes जो पंचवटी પંચમરી पंचवटी એ એવું કે છે કે અમે આયા છે. yeah જય જેઠા. you getting this yeah no papa go सीढ़ियों भाई जाऊ छे पांडा गुफा નીચે ફૂલ છે. જગન્નાથ ટેમ્પલ જવું છે મંદિર નથી, આ હિલ સ્ટેશન છે. કોઈ આવી રીતના જ ફરવાનું છે. આ કયું ટેમ્પલ છે કહેવાનું તારે ધંધો છે. होटल वगैरह 1 किलोमीटर नीचे जाना है यहाँ से. આ મમ્મીએ લીધી છે. ખરું કામ કર્યું. દાદા ના લાવજો. તમે જતા રહે આગળ એટલે પછી હું એ જ કહું છું. એ તારા પપ્પા ના. Okay guys, so we are right now up in the mountains. As you can see, we have drove about 4 hours. Look at the shops over here. Oh. Okay guys, we have drove so many hours. I'm talking like 4 or 5 hours. And we are right now. Oh my god, look at this. It's absolutely amazing. And there's so many shops you can buy from. It's amazing. It's almost endless. We can't wait to further go in and see other stuff. And not only that, but we'll be staying here for a couple days. We absolutely can't wait. Woo! We are walking more further in. Look, it keeps getting more beautiful. I'm telling you guys, it keeps getting better and better. Look at this place, man. Comment down below how nice this place is. Look at the creek. Just flowing. It's so nice. Look at the small creek. Keeps growing. Wow. How amazing. So, we will be walking about 1 kilometer inwards and we'll be finding some more very cool stuff. Like including a waterfalls, beautiful nature. It's going to be absolutely amazing. And I can't wait to show you guys. રેકોર્ડિંગ ચાલુ 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 कर दो. हो गया आपका बात हो गया आपका. अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना. इतनी फैमिली अपनी में साथ में सर, तो यहाँ सभी लोग साथ में चलेंगे ग्रुप बना करके. जो भी शॉपिंग वगैरह करना है आप लोगों को तो रिटर्न में आकर कीजिएगा. इसी रास्ते से वापस आना है आप लोगों को ना. अच्छा, ये जो सामने पे देखिए अपन भगवान शंकर की मूर्ति, ये अपना जटाशंकर मंदिर का प्रथम दर्शन है ये. और ये मूर्ति इसी पत्थर को तराश करके बनाई हुई मूर्ति है. ये छेनी हथौड़ी से काट करके उस कलाकार का नाम लिखा सामने तख्ती पर, स्वर्गीय किशन लाल भुशील.
जटाशंकर के मंदिर के रास्ते में उन्होंने 5 मूर्तियां बनाया था, जो कि 4 मूर्ति कंप्लीट कर चुके थे। वो 5वीं मूर्ति बना रहे थे माता काली की। फॉरेस्ट वालों ने उस पर बैन लगा दिया था। बैन क्यों लगाया था मैं आप लोगों को उसी मूर्ति सामने चल करके बतलाऊंगा मैं। और ये जो पंचमढ़ी के पहाड़ जो आप लोग देखते हैं, पूरा सैंडस्टोन पत्थर है, पूरा रेतीला पहाड़ है ये, इसलिए इस पर मूर्ति आसानी से बन जाती है। यहाँ पे आप लोग आए इससे पहले घूमने के लिए, आप आए पहले घूमने के लिए। ये थी अपनी पुरानी पार्किंग सामने वाली। जी हाँ, 2018 के पहले यहाँ तक गाड़ी आती थी अपनी। आनंदीबेन पटेल थी, गुजरात की रहने वाली, गवर्नर सीएम थी, अपने एमपी की राज्यपाल थी वो। तो वो शिवरात्रि मेले में घूमने के लिए आई थी यहाँ पे। तो पार्किंग स्पेस यहाँ पे छोटा होता था, इसलिए उन्होंने यहाँ से 500 मीटर पीछे पार्किंग कर दिया। तो उनके नियमों का पालन आज भी करते हैं यहाँ पे। यहाँ से अपन नमन करेंगे, फिर आगे की ओर चलते हैं अपन यहाँ से, ठीक है। और ग्रुप बना करके ही चलिएगा सभी लोग, ठीक है ना। तो काम आ गया है, 100 रुपये इनको दीजिएगा और बहुत महंगा आपको जी सर। मंदिर की जो दूरी है लगभग 400 मीटर डीप में है ना। इस मंदिर के रास्ते में हम कुछ नेचुरली चीज़ें, कुछ आर्टिफिशियली, कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें देखते हुए चलेंगे। जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा या बताऊंगा, आप लोगों को ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है ना। बाकी ये जो पीछे में आप लोग मंदिर देखते हैं, इस मंदिर का नाम है सर्वकामना संकट मोचन हनुमान मंदिर। यह पंचमढ़ी का सबसे बड़ा राम मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि पीछे में जो हम पहाड़ देखते हैं, इस पहाड़ को काट कर तराश कर इस मंदिर का निर्माण किया गया। अभी जिस आर्टिस्ट के बारे में दिया ने बताया, तो उनकी बनाई गई दूसरी प्रतिमा इसी मंदिर के अंदर में रखी गई है। हनुमान जी की जो सिंगल चट्टान को तराश कर बनाई गई है। और इस मंदिर के अंदर में एक गुफा भी है, जिसे कहा जाता है ऋण मुक्तेश्वर गुफा। ऋण जानते होंगे आप लोग, जो कर्ज का दोष है ना, कहा जाता है उस गुफा के अगर हम दर्शन करें तो दर्शन मात्र से ही ऋणों के दोष से मुक्ति हो जाती है। और रामायण तो आप सभी लोगों ने देखी होगी, आपको पता होगा प्रभु श्री राम जब लंका जा रहे थे माता सीता को लेने के लिए, तो रामेश्वरम से लेके लंका तक का पानी में पत्थरों के पुल बनाए थे। उनमें से कुछ पत्थर रामेश्वरम से लाकर इस मंदिर के अंदर में रखे गए हैं, जो आज भी यहाँ पे पानी में तैर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि उन पत्थरों को आप अपने हाथों से उठाकर फिर पानी में डाल सकते हैं। लेकिन इस मंदिर के हम लोग रिटर्न में दर्शन करेंगे, पहले हम मेन मंदिर की ओर चलेंगे। How fascinating was that? It is so awesome. Our guide will be telling us a bunch of things while we go, and we can't wait for so much historical facts about India and its country and so much more. Let's see. थोड़ा सा आप लोग ऐसे आ जाइए, इतने में आ जाइए ताकि दिखाई दे जाए जो दिखा रहा हूँ। देखो सभी लोग ना ये वाला जो स्टोन लेता हुआ है, इस स्टोन को देखना है जिसमें ब्लू कलर में लिखा हुआ है जय माँ काली 1961। वो सामने में ब्लैक कलर की जो वायर है, वायर के जस्ट नीचे में देखें तो एक फेस बना हुआ है, दिखाई दे रहा है। नोज है, आईज है, तीत बाहर है, माथा मुकुट बना हुआ है। ध्यान से अगर देखें तो वो माता काली का चेहरा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, है ना। ये उन्हीं आर्टिस्ट की बनाई गई लास्ट प्रतिमा है। जब ये मूर्ति बनाना उन्होंने शुरू किए थे तो सिर्फ चेहरा बना पाए थे, और चेहरा बनाने के बाद में इसमें लगा दिया फॉरेस्ट गवर्नमेंट ने बैन। बैन लगाने का रीज़न ये था कि जिस मंदिर में हम अभी दर्शन करने जा रहे हैं, ये पूरा कुदरती मंदिर है, नेचुरली मंदिर है। यहाँ पे अगर ऐसी आर्टिफिशियल मूर्तियाँ बनाई जाएंगी तो यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। और अगर ये मूर्ति कंप्लीट हो जाती तो यहाँ पे इससे बड़ा एक मंदिर भी बनाना पड़ता, लेकिन इतना स्पेस यहाँ था नहीं कि एक मंदिर बनाया जाए, इसलिए फॉरेस्ट गवर्नमेंट ने इसमें बैन लगा दिया। लेकिन इस मूर्ति को देखने के बाद में हम इसके बाद जो भी चीज़ें देखेंगे वो हवा और पानी के कटाव से नेचुरली देखेंगे, ऐसी आर्टिफिशियल नहीं। क्लियर सभी लोगों को? ओके, Let's go. Look at this. Oh wow, how amazing. Let's keep going. આવું લેવાય ધ્યાન લિમિટમાં, આવા ધોકા લેવાય, Wow. Look at Shiva. આવા લેવાય. અરે યાર Look at this. Wow. How nice. ચલો આડા નીચે. जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि अब हम जो भी चीज़ें देखेंगे वो पूरी नेचुरली देखेंगे, है ना। घर में जैसे हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले किस भगवान की पूजा,
वो दोनों चट्टानों के बीच में एक लाल झंडा लगा हुआ है। उस झंडे के बाजू का जो स्टोन है उससे आपको ध्यान से देखना है। यस यस यस। नीचे में सूंड वो ला के ऊपर में माथा मुकुट बना हुआ है। ध्यान से अगर देखें तो वो साइड फेस आपको भगवान गणेश का देखने के लिए मिलेगा। ये किसी ने बनाया नहीं है, दिखाई दिया सभी लोगों को। ये किसी ने बनाया नहीं है, ये हवा और पानी के कटाव से नेचुरली बना हुआ है। देखिए आप लोग पंचमढ़ी अभी विजिट किया है ना, तो यहाँ पे आप लोगों को फ्लैट जमीन बहुत कम देखने के लिए मिलेगी। सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी कहलाता है और सतपुड़ा की रेंज में लगभग 9 लाख माउंटेन पाए जाते हैं। लेकिन ये जितने भी पहाड़ है मैम, आप लोग थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान दीजिए ना। वहाँ पे सुनो, आप लोग बात कर लीजिए या तो फिर मेरी बात कर लीजिए, है ना। देखिए यहाँ पे ना सतपुड़ा की रेंज में लगभग 9 लाख माउंटेन पाए जाते हैं। लेकिन ये जितने भी पहाड़ आप लोग देखते हैं ये पूरे सैंडस्टोन माउंटेन है, रेतीले पहाड़। कहा जाता है पंचमढ़ी हज़ारों साल पहले पूरा पानी के अंदर था। जैसे जैसे यहाँ का वाटर लेवल कम होते गया वैसे वैसे यहाँ के पहाड़ निकलते गए। पहाड़ों में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जैसे समुद्र में लहरें चलती हैं उस टाइप में आप लोगों को कटाव देखने के लिए मिलेगा। तो ये पंचमढ़ी का वाटर लेवल बताता है। और इनमें जो छोटी छोटी पत्थरों की लेयर्स लगी हुई है इन्हें कहा जाता है सेडिमेंटरी रॉक्स। गारगोटी पत्थर भी कहा जाता है और चकमक पत्थर भी कहा जाता है। पहले के टाइम में लाइटर या माचिस वगैरह नहीं हुआ करता था। जो पुराने ज़माने के लोग थे वो इन्हीं पत्थरों की मदद से एक पत्थर को दूसरे पत्थर में क्रैश करके आग जलाया करते थे। लेकिन अगर अभी आप लोग कोशिश करें इन पत्थरों को निकालने की तो एक हथौड़ा भी अगर आप मारें तो ये आधे टूट जाएंगे, लेकिन ये पूरे निकलेंगे नहीं। क्यों नहीं निकलेंगे? जैसे ही वाटर लेवल कम हुआ हीटिंग बढ़ी, हीटिंग बढ़ने की वजह से लावा निकला। लावा इन पहाड़ों के ऊपर में पतली परत बन के चढ़ा हुआ है, इसलिए यहाँ कभी ऑटोमेटिक लैंडस्लाइड नहीं होता, ऑटोमेटिक चट्टानें कटकर नहीं गिरती हैं। लेकिन जब यहाँ बारिश हो रही है, रेतीले पहाड़ हैं, इन्हें पानी का टैंकर भी कहा जाता है। जब बारिश हो रही है तो ये पूरा पानी अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर रहा है। वही जो पानी रहता है इन झाड़ पौधों की रूट्स में मिलता है। तो पंचमढ़ी में कभी पतझड़ नहीं होता, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरा, जब इन पहाड़ों के ऊपर में धूप पड़ रही है तो जो पानी है वो भाप बन के नीचे आ रहा है, झीर बन के निकल रहा है, एक स्रोत में कन्वर्ट हो रहा है और स्रोत जो है वो आगे चल के एक वाटरफॉल बन जाएगा। तो पंचमढ़ी के जितने भी वाटरफॉल्स हैं यहाँ पे वाटरफॉल में पानी की कमी नहीं होती है। अच्छा, इन पहाड़ों में से निकलने वाली एक खास चीज़ के बारे में और बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। कभी आप लोगों ने शिलाजित का नाम सुना है? पहाड़ों से निकलता हुआ शिलाजित देखे हैं कभी आप लोगों ने? मैं आप लोगों को शुद्ध शिलाजित दिखा रहा हूँ पहाड़ों से निकलता हुआ। चॉकलेटी कलर के निशान दिखाई दे रहे हैं, ऑयली ऑयली टाइप में जो बह रहे हैं, दिखाई दिए सभी लोगों को? ये ऑयली ऑयली टाइप में, इसी को कहा जाता है शिलाजित। जब पहाड़ों में ज़्यादा ही धूप पड़ रही है तो इसमें जो मिनरल्स और विटामिन है वो जनरेट होकर एक लिक्विड फॉर्म में बाहर आते हैं ना। ये बंदरों का बहुत ज़्यादा फेवरेट रहता है। तो बंदर जहाँ तक का पहुँच पा रहे हैं इसे पूरा चेक कर देते हैं। लेकिन जहाँ बंदर नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ पे हमारे इधर के लोकल आदिवासी लोग झूला डालते हैं। झूला डालने के बाद इसे कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद गर्म पानी में से इतना फिल्टर किया जाता है कि एक ब्लैक कलर का स्टोन बन जाता है। रिवाइटल का ऐड देखा होगा आप लोगों ने। वो रिवाइटल अगर हम खाएं तो दिन भर बॉडी में एनर्जी बना के रखता है। लेकिन इसका चावल के टुकड़े बराबर का दाना आप लोग आज खा लो और आज से लेके लगभग 1 वीक तक का जितना आज ट्रैक कर रहे हो उससे डबल भी ट्रैक करेंगे तो ये बॉडी के अंदर में वीकनेस ही नहीं आने देता है। क्योंकि ये बॉडी के अंदर में जाकर इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, स्टैमिना मजबूत करता है। उसके अलावा अगर परिवार में कोई ऐसा मेंबर है जो सिगरेट वगैरह पी रहा है, उनके लंग्स में भारी मात्रा में निकोटीन इकट्ठा होता है जिस वजह से अस्थमैटिक प्रॉब्लम्स होती हैं। उन्हें अगर खिलाते हैं तो लंग्स में निकोटीन इकट्ठा नहीं होने देता। और परिवार में अगर कोई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें पीरियड्स के टाइम में PCOD, PCS, हैवी ब्लीडिंग, हैवी पेन या क्रम्स वगैरह आ जाते हैं, उन्हें अगर खिलाते हैं तो ये PCOD की प्रॉब्लम को भी क्योर करता है। ऐसे लगभग 365 बीमारियों के इलाज में आता है। लेकिन ये कोई बीमारी के पर्पज़ से नहीं होता है, निरोग रहने के लिए। और अगर आप लोगों को टेस्ट करके देखना हो कि ये शिलाजित होता कैसा है टेस्ट में तो मुझे बताइएगा, मैं रिटर्न में आप लोगों को टेस्ट भी करा दूँगा। ठीक है? भगवान के मंदिर में जा रहे हो, शिव जी का, हाँ, शिव जी का एक वाहन होता है उसका नाम नंदी है। देखो राइट साइड का माउंटेन है, माउंटेन के टॉप में एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ है। उस पत्थर को अगर हम ध्यान से देखें तो सामने में फेस कटा हुआ है, पीछे में ऐसा दिखाई देगा। दिखाई दिया सर? कहाँ जूम कर रहे हैं आप? पुछड़ी दिखाई अच्छा ना There has been so much information so far. Tell me in the comments how you guys like it. So fascinating. The language is a little different, so like
हम लोग ना जिस मंदिर में जा रहे हैं अब यहाँ से बस पास ही में आ गया है। और ये जो मंदिर हम दर्शन अभी करने जा रहे हैं ये पूरा नेचुरली मंदिर है, ये कोई आर्टिफिशियल मंदिर नहीं है, बनाया गया मंदिर नहीं है, है ना। यहाँ पे इसके अलावा पंचमढ़ी के अंदर ऐसे 4 मंदिर और पाए जाते हैं और चारों मंदिर जो हैं वो कुदरती मंदिर है और बहुत मान्यता वाले कहलाते हैं। सब में पानी आता है। हाँ, आज से 32 साल पहले महाराष्ट्र के कुछ लोग आए थे, उन्होंने मन्नत मांगे थे। मन्नत के तौर पे उन्होंने यहाँ अष्ट धातु की पीतल की पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके गए। तो ये जो वाइट कलर का मंदिर देखते हैं इस मंदिर के अंदर आपको अष्ट धातुओं की पार्वती जी की मूर्ति देखने के लिए मिल जाती है। उसके अलावा सामने में जो भगवान शंकर और पार्वती जी की मूर्ति हम देखते हैं ये उन आर्टिस्ट की बनाई गई लास्ट प्रतिमा। ये मूर्ति कंप्लीट होने के बाद में फिर उन्होंने माता काली का चेहरा बनाना शुरू किया था, है ना। वैसे अभी मैंने आपको बताया हूँ कि पंचमढ़ी में लगभग 9 लाख माउंटेन पाए जाते हैं। वैसे यहाँ पे लगभग 30 से 35 किलोमीटर के अराउंड में कहीं खेती किसानी नहीं होती है। खेती के नाम पर यहाँ पे आपको एक टमाटर भी उगता हुआ नहीं दिखाई देगा। और दूसरा यहाँ कहीं पे आप लोगों को फूल वगैरह नहीं देखने के लिए मिलेंगे। फूल यहाँ पे सिर्फ आपको जंगली देखने के लिए मिलेंगे। पंचमढ़ी सिटी में 2 ही गार्डन बनाए गए हैं, एक पांडव गुफा और दूसरा राजेंद्र गिरी उद्यान है, इसलिए बाहर सिटियों से लाकर वहाँ पे फूल लगाए गए। बाकी पंचमढ़ी में ना ही तो खेती किसानी और दूसरा यहाँ पे कहीं फूल नहीं है। घर में आप लोग ऑनियन वगैरह यूज़ करते हो? प्याज कितना बड़ा देखे हैं आप लोगों ने? इधर इतना बड़ा था। हमारे पंचमढ़ी में ना एक ऑनियन का साइज़ हो जाता है लगभग 50 kg तक का। यहाँ 50 किलो का एक प्याज पाया जाता है। लेकिन प्याज कितना भी बड़ा हो जाए उसमें रस नहीं होता है, इसलिए वो खाने की यूज़ में नहीं लिया जाता है। घर में हम लोग भिंडी काटते हैं ना, भिंडी काटो उसमें हमें कुछ फाइबर के रेशेस देखने के लिए मिलते हैं। इस प्याज को अगर हम कहीं से काटें या तोड़ें तो इसमें भी आपको फाइबर के रेशेस देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन ये पूरे फॉरेस्ट इलाका है तो फॉरेस्ट गवर्नमेंट इतना बड़ा प्याज रखना यहाँ पे अथराइज नहीं करती, अलाउ नहीं करती। इतना बड़ा प्याज आपके हाथों में देके दिखा दूंगा जिसकी आप लोग फोटो वगैरह क्लिक कर लीजिएगा। बाकी वो किस चीज़ के यूज़ में आता है जब मैं आपको वो प्याज दिखाऊंगा तब मैं बता दूंगा। दर्शन करके आ जाइए आप लोग। सर्दी में આપણે પેલી મુલાય Okay, guys, let's go. Oh my god. Look at this. Wow. Look at that. So awesome. That's real. Wow. Look at the stairs. It's pretty risky. So be careful. Oh my god. It's so big. Be careful. ચલો નીચે આવો વિડિયો। આવી ગયું। Okay, so that was a lot of stairs, and yes, it is pretty risky. So be careful if you guys come here. Oh my god! Oh wow! If you guys notice in there, there's actually a murti that you guys can see. Wow, how nice. All hidden in this rock. How beautiful. Let's ring the big bell. Three, two, one. Ah, I missed it. Oh. I did it. There you go. You made it. That's pretty high. But also, it's very nice. Look at the golden color. Wow. And what a big bell. Let's keep going. Looks like at this point we might have to take our boots off. No. I mean, you can. Yes, correct.
on. यहाँ पे गर्मी नहीं लगती। अभी ना आप लोगों को मैं पंचमढ़ी की एक डिश ट्राई करा रहा हूँ। उन्हें अगर कभी आपको गूगल में सर्च करना हो तो उसे नाम दिया गया स्टेडिया। हिंदी में उसे कहा जाता है गुड़मार और उसे संस्कृत में कहा जाता है मधुनाशी। सर सभी को ये पत्ते दीजिए ना। सभी लोग इसे पान के पत्ते की तरह चबाइएगा। ये लगभग 6 महीने तक का आपके ब्लड को फिल्टर करके रखेगा। आपके चेहरे में पिंपल्स नहीं आने देगा। आपके बॉडी के अंदर में बुखार नहीं आने देगा, है ना। ये खाने में हल्का सा मेथी की भाजी टाइप में लगता है। खाने में हल्का सा कड़वा लगेगा। इसको अच्छे से चबा लो, उसका रस अरे मस्त आइटम जाते। अच्छा, ये जो पत्ता अभी आप लोगों ने खाया हो ना, सर थोड़ा सा मेरी तरफ से, ये जो पत्ता अभी आप लोगों ने खाया हो ना, इसका मेन वर्क हमारी बॉडी के अंदर में ये रहता है कि हार्ट के पीछे में एक पॉइंट रहता है जिसे कहा जाता है पैनक्रियास। अगर आप लोग जानते हैं, ये जाकर बॉडी के अंदर पैनक्रियास को इम्प्रूव करता है। और पैनक्रियास अगर हमारी बॉडी के अंदर में सही इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है तो कभी शुगर लेवल हाई या नहीं होता है ना। अच्छा, ये पत्ता खाने के बाद में एक मैजिक और होता है। वो मैजिक कैसा होता है कि अभी से लेके 12 घंटे तक का आप कितना भी मीठा खाओगे तो मीठा नहीं लगना। शक्कर रेत जैसी, चाय, गर्म पानी, रोटी, न्यूज़पेपर, चावल भूसे जैसा और गुलाब जामुन वगैरह खाते हैं ना तो वो मैदे जैसा लगेगा। अगर आप लोगों के पास में चॉकलेट हो तो ट्राई कर देखो, ऐसा लगेगा जैसे जमीन से एक कंकड़ उठा के खा रहे हो। वो चॉकलेट Let's try something, correct? No, not me, you guys try. I'm recording, so whoever wants to try. Let's see if it's actually The truth. के बाद में ऐसा लगेगा जैसे जमीन से आप कंकड़ उठाते नहीं अरे तारा तो नाना की दादा ने डायबिटीज वाला है आपकी फैमिली में, और अगर कोई है डायबिटीज वाला और उन्हें रेगुलर 3 मंथ ये पत्ता अगर खिलाते हैं तो आने वाले 15-20 सालों तक का टैबलेट, इंजेक्शन या इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये शुगर को मेंटेन करके रखता है ये पत्ता, है ना। तो अभी से लेके 12 घंटे तक का जैसे ये मुंह में टेस्ट नहीं आने दे रहा है, वैसे इसे 3 मंथ्स अगर रेगुलर खा लो तो डायबिटीज़ की शिकायत नहीं होगी आने वाले 15-20 सालों तक का। अच्छा, अभी आप लोग पंचमढ़ी घूम रहे हैं, मैम थोड़ा सा Garu nothing like that? Okay, so there is no sweetness. अभी आप पंचमढ़ी घूम रहे हैं। पंचमढ़ी जो है वो सतपुड़ा की रानी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। पंचमढ़ी के ट्रिप के बाद में कभी आप किसी जंगल सफारी में जाते हैं या किसी जू में जाते हैं तो सबसे पहले किस जानवर को देखना पसंद करोगे आप लोग? टाइगर, चीता। तो देखो राइट साइड में वो स्टोन लिखा हुआ है, ऐसा दिखाई देगा जरूर वाला, है ना, दिखाई दिया। अच्छा, उसके अलावा अभी आप लोग पंचमढ़ी तो घूम रहे हैं, यहाँ पे आपको 3 चीज़ें नहीं देखने के लिए मिलेंगी। एक तो किसी भी टेंपल में जाते हैं तो भिखारी नहीं देखने के लिए मिलेंगे, दूसरा यहाँ पे डंकी मतलब गधे नहीं होते हैं, और तीसरा पंचमढ़ी में चोर नहीं होते हैं। अगर आपका कोई सामान किसी जगह पे छूट रहा है तो पंचमढ़ी में एक यूनियन बनाई गई है, उसमें उसकी फ़ोटो लेकर क्लिक करके डाल दी जाती है और जिसका भी सामान रहता है उनकी होटल तक का पहुँचा दिया जाता है। लेकिन यहाँ के जो लोकल चोर होते हैं वो यहाँ के मंकीज़ होते हैं, बंदर होते हैं, तो वो खाने पीने का सामान देख कर वो जब लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बंदरों से सावधान रहना। बाकी अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं तो मंदिर की मर्यादाओं का पालन करते हुए सभी लोग बूट एंड सॉक्स एक जगह पर निकाल लीजिए। 12 hours. So how was the experience after the whatever their leave is? हाँ, एक पत्ता खाता पति गोली खाती तो घड़ी नहीं लगती। फीलत नहीं Feel नहीं होती। स्टोन खाता हुआ है। हाँ, खाली That's awesome. कोई टेस्ट नहीं लगता। Look at the small leaves just do that for you. makes सॉक्स भी काटवाना। Nope. ध्यान से देखो, बहुत सारे हनी कॉम्स आपको दिखाई देंगे, दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। अब थोड़ा सा मेरी तरफ में ध्यान दीजिएगा तो इसकी बहुत अच्छी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप लोग यहाँ घूम रहे हो ना, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे कहीं फूल नहीं पाए जाते हैं ना। जब यहाँ पे फूल नहीं है तो मधुमक्खी इतना सारा शहद कैसे तैयार कर रही है? इस जंगल के अंदर में पाया जाता है लगभग 36,000 प्रकार का हर्बल, जिनके फूलों के ऊपर मधुमक्खी बैठी उसका अर्क ली, उसका शहद तैयार की। घर में जो आप लोग डाबर, पतंजलि या वैद्यनाथ का हनी यूज़ करते हैं वो खाने में आप लोगों को मीठा लगता होगा, लेकिन पंचमढ़ी के हनी की विशेषता यह है कि ये खाने में मीठे के साथ में हल्का सा बटरी टाइप में टेस्ट होता है, इसलिए ये कहलाता है वर्ल्ड का 2nd नंबर का हनी। 1st नंबर का कहलाता है ब्राज़ील का, क्योंकि वो अमेज़न के जंगल में पाया जाता है। वहाँ का जो हनी है वो
वो खाने में मीठे के साथ में हल्का सा खट्टा टाइप में होता है, इसलिए वो फर्स्ट नंबर का है। सेकंड नंबर का हमारे पंचमढ़ी का है, क्योंकि ये खाने में मीठे के साथ में हल्का सा बटरी टाइप में। और थर्ड नंबर का कहलाता है सुंदरबन कोलकाता का। वहाँ का जो हनी है, वहाँ जैसे हनी हम टेस्ट करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मिर्ची खा रहे हैं, है ना, तो वो थोड़ा सा तेज टाइप में होता है, इसलिए वो थर्ड नंबर का कहलाता है। अब वर्ल्ड की सेकंड नंबर की यहाँ पे रैंक मिली गई है इस हनी को, क्योंकि इसकी मेडिसिन वैल्यू ज़्यादा है, तो इसके फ़ायदे भी उसी प्रकार से हैं। जैसे घर में अगर 25 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही हो, उन्हें अगर यहाँ का शहद खिलाते हैं तो ये हाइट बढ़ाने वाले हार्मोन्स जनरेट करता है, हाइट तेज़ी से बढ़ाता है। किसी को वज़न को बढ़ाना है और दूध के साथ में अगर हम देते हैं तो ये वज़न को बढ़ाएगा, गर्म पानी के साथ वज़न को कम करता है। और उसके अलावा जिनकी आँखों में पावर वाला चश्मा हो, मोतियाबिंद, जारिया वगैरह, या ब्लड जम जाता है ना, आई विज़न वीक रहता है, 3 मंथ्स अगर हम रेगुलर आँखों के अंदर में काजल की तरह लगाते हैं तो ये आई साइट प्रॉब्लम्स को क्लियर करता है, आई विज़न को बढ़ाता है और पावर वाले चश्मे को उतारता है। इसलिए ये कहलाता है वर्ल्ड का सेकंड नंबर का हनी। क्लियर सभी लोगों को? यस चलो लेट्स गो। चल स्टार्ट। Let's go. Did you guys see the birds? Wow, that's pretty nice. चलो चलो चलो, रुकना मना है। Look how steep that is. That is absolutely wild. It's like a mini lake. Wow, look at this rock. It looks nice. Wow, look at this. Wow. So so we are now going to underneath the cave, and there's gonna be water, and there's gonna be all different kinds of statues and murtis. Let's check it out. Oh my God! Look at this. सभी लोग ना, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप लोग देखिएगा। ये सामने में फेस बना हुआ है, इसके नीचे में कुछ डार्क टाइप में दिखाई देंगे। बॉडी शेप ये है, और लास्ट में वो पूंछे ना पहाड़ों में जाकर चिपकी हुई है। शुरू से लेके एंड तक का देखते हैं ना, पूरा ऐसा दिखाई देगा जैसे क्रोकोडाइल बना हुआ है। इसकी बॉडी के ऊपर में नेचुरली 108 शिवलिंग लगी हुई है ना, और ये जो शिवलिंग है इनके ऊपर में 12 महीने पानी की बूंदें ऐसे ही गिरती रहती है। कभी आप भस्मासुर शंकर जी की कहानी सुनी? भस्मासुर ने हजारों साल तपस्या करके भगवान शंकर से एक वरदान प्राप्त किया था कि जिसके भी सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। जैसे ही भस्मासुर को वरदान मिला, उसने सोचा शंकर जी को भस्म कर दूं, पार्वती जी को पाकर कैलाश को जीत लूँगा। तो जब भस्मासुर भगवान शंकर के सर के ऊपर हाथ रखने के लिए दौड़ा, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कैलाश छोड़कर नीचे आना पड़ा था। पंचमढ़ी में उन्होंने अपने 5 स्थान लिए थे, उनमें से पहले स्थान में अभी हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पे आकर उन्होंने अपना भेष बदलने के लिए पहले एक मगर का रूप लिए, लेकिन भस्मासुर ने उन्हें पहचान लिया, तो उन्होंने यहाँ पे अपनी विशाल जटाएं मतलब उनके बालों का त्याग किए थे। त्यागी हुई जटाओं से प्रकट हुई यहाँ पे कुछ मार्बल की शिवलिंग है, जिनके ऊपर में अगर आप हाथ फेरो तो ऐसा लगेगा जैसे कि उनके मतलब किसी के बालों के ऊपर में हाथ फेर रहे हैं ना, इसलिए इस मंदिर का नाम रखा गया है जटाशंकर। यहाँ से फिर वो अपनी जान बचाती हुई लगभग 13 किलोमीटर दूर एक और मंदिर पड़ता है, उस मंदिर का नाम है गुप्त महादेव। वहाँ जाकर वो गुप्त हुए थे, वहाँ से फिर वो अपनी जान बचाती हुई पंचमढ़ी के सबसे हाईएस्ट टेम्पल, उस मंदिर को कहा जाता है चौड़ागढ़। वहाँ जाने के लिए लगभग 1365 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। ऊपर में जाते हैं तो हज़ारों की मात्रा में आपको त्रिशूल देखने के लिए मिल जाते हैं। भगवान शंकर जब गुप्त महादेव से अपनी जान बचाती है चौड़ागढ़ की तरफ बढ़े, वहाँ चौरा बाबा नाम के तपस्वी तपस्या कर रहे थे।
भगवान शंकर ने उन्हें अपने दर्शन दिए थे और अपने त्रिशूल का त्याग किए थे। तो मान्यताओं के हिसाब से वहाँ पे त्रिशूल चढ़ाए जाते हैं। वहाँ अगर जाते हो तो आपको 10 ग्राम से लेकर लगभग 1500 kg तक के त्रिशूल देखने के लिए मिल जाएंगे। वो उनका कहलाता है तीसरा मंदिर। चौथा मंदिर कहलाता है नागद्वार। चौड़ागढ़ से भगवान शंकर जब नागद्वार की तरफ बढ़े, वहाँ पे जाकर उन्होंने अपने गले का नाग त्याग किए थे। अच्छा, पंचमढ़ी में ना प्रतिवर्ष लगाए जाते हैं 2 मेले, एक शिवरात्रि का और दूसरा नाग पंचमी का। शिवरात्रि का जो मेला है वो लगाया जाता है चौड़ागढ़ मंदिर के लिए, और नागद्वार का जो मेला है वो लगाया जो नाग पंचमी का मेला है वो लगाया जाता है नागद्वार के लिए। और नागद्वार सिर्फ साल में 10 दिन के लिए खोला जाता है। जब सावन में यहाँ पे नाग पंचमी का मेला लगाया जाता है, वो साल भर बंद रहता है, वो सिर्फ साल में 10 दिन ही के लिए खोला जाता है। 4 मंदिर के बारे में मैंने आपको बता दिया। 5वां मंदिर कहलाता है बड़ा महादेव। नागद्वार से भगवान शंकर जब अपनी जान बचाते हुए बड़े महादेव की तरफ बढ़े, विष्णु भगवान ने पुण्य रूप लेकर भस्मासुर से ये कहते, जैसा जैसा मैं नाच रही हूँ वैसा वैसा तू भी नाचना। भस्मासुर नाचने में इतना मगन हो गया था कि नाचते नाचते उसने अपने सर के ऊपर हाथ रख दिया था। आप लोग अभी बड़े महादेव जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक बड़ा सा पानी का कुंड देखने के लिए मिलेगा। उस कुंड का नाम दिया गया है भस्मा कुंड, और उसी कुंड के जस्ट बाजू में देखेंगे तो एक वाइट कलर की चार्ट मेंशन की गई है, उसमें भस्मासुर और भगवान शंकर की स्टोरी लिखी गई है ना। और ये जो 5 मंदिर है यहाँ पे कहलाते हैं मणिकरू, और पांडवों के नाम पे यहाँ 5 आर्टिफिशियल गुफा जिन्हें पांडव गुफा के नाम से जाना जाता है। तो पांडवों में से अगर हम पंच लें और इन 5 मंदिरों को मणि माने तो दोनों मिलाकर इस सिटी का नाम होता है पंचमढ़ी, है ना। बाकी वो जो ऑरेंज कलर के शेषनाग है वो शेषनाग नहीं, वो भगवान शंकर की जटाएं, वही मेन मंदिर है, वहीं आपको दर्शन करना है। वहाँ से रिटर्न नहीं आना, वहाँ से ऐसे घूम के जाते हैं तो ऊपर वाला जो मंदिर है वो पार्वती मंदिर है, स्थापित किया गया सन 1947 में। वहाँ पे अष्टधातु का त्रिशूल रखा गया था। दोनों मंदिर के दर्शन कर लिए। अच्छा, यहाँ से भी आप फोन वगैरह अलाउ नहीं है।